Yeah, good morning, everyone. In the last few classes, we were talking about the parabola as one of the conic section, and today I am going to introduce the next type of conic referred to as an ellipse. So all the planets move around the sun in the elliptical path. We all know this very well. So before I define what exactly is a ellipse, and there are two different ways in which we can define the ellipse. Let me show one video so that you'll have a better idea about the shape. I need to change the view. तभी दिखाई देगा वो video. I'm doing that. Is the video visible? Okay. Can anyone recall I did talk about few of the properties of ellipse when we were meeting physically in the school? Anyone? Whenever we go to the marriage or any function, the salad, the shape of salad, the carrot, gajar किस shape में काटी जाती है? That generally is in the shape of an ellipse. There is a specific reason for the same. Volume remains the constant. Area, the maximum area will be exposed if we take the shape of ellipse instead of a circle. Similarly, school के सामने ही हरिओम भटूरा. Some of you must have tasted. So you must have again noticed the भटूरा shop जितने भी हैं, the भटूरे जो बनाए जाते हैं, they are generally of the shape more or less elliptical. The reason is again the same.
वॉल्यूम उतना ही लिया, मतलब मान लीजिए उन्होंने क्वांटिटी ली है एक भटूरे को बनाने के लिए 50 ग्राम ऑफ मैदा, बट 50 ग्राम ऑफ मैदा से अगर आप सर्कुलर शेप बनाएंगे वर्सेस इलिप्टिकल शेप बनाएंगे तो मोर एरिया विल बी एक्सपोज्ड, देखने में वो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी if it is a ellipse. Even we have our Tata Sky dish antennas. Likewise, in the last video जो हमने देखा था parabola के केस में कि generally they are parabolic curves, but there are the companies who are manufacturing the elliptical dishes also. Reason, they have more reflexive properties than the parabolic curve. तो उससे ज्यादा बेटर ट्रांसमिशन होता है इफ इट इज एन इलिप्टिकल कर्व। सेम वे अगर आप इमेजिन करें जो आपके पेट्रोल टैंक होते हैं जिसके अंदर पेट्रोल को एक जगह से या डीजल जिसके अंदर कैरी करा जाता है ऑयल्स, सो वो उनमें थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स की कैपेसिटी होती है, तो दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो उस केस में भी अगर आप उनकी शेप्स को ध्यान से देखें वो इलिप्टिकल रखी जाती हैं। उनका जो अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे बैक साइड से अगर आप उस ट्रक को देखते हैं टैंकर को देखते हैं, सो दैट इज एक्चुअली इलिप्टिकल इन शेप। कुछ सर्कुलर भी बना देते हैं, इंडिया में दोनों काम हो रहे हैं, सर्कुलर भी बन जाते हैं, बट अगर प्रैक्टिकली और एक कॉमन सेंस की बात करी जाए इट हैज टू बी इलिप्टिकल। रीजन, इलिप्स के होने से जो उसका सेंटर ऑफ मास है, यू आर द फिजिक्स स्टूडेंट सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर, तो उसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाता है, ग्राउंड की तरफ नीचे की तरफ हो जाता है, और उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटर हो जाती है, और उस केस में उसका ब्लास्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलमोस्ट निल। बट सर्कुलर का होगा तो उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इलिप्टिकल शेप इज जनरली प्रेफर्ड व्हाइल डिजाइनिंग ऑल दीज ऑटोमोबाइल्स। चेक दिस आउट। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर, यहां तक जो अभी डिस्कस हुआ है। और यही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग वीडियो था कि अब टू फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन द सेम रूम जिसका जो टॉप रूफ है वो इलिप्टिकल शेप है, तो दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग एट द पोजीशंस F1 एंड F2। और बेनिफिट क्या हुआ उस केस में, कहीं पर भी हम अगर बात करते हैं दिस कांस्टेंट F1A plus F2A, this distance is always fixed as A।
Anyone? What will happen if these two foci coincide? Anyone? Yeah, yes, good. Imagine this situation. चलिए, before we move on, everyone, please mark your attendance. Okay, I just noticed आतिश ने और आंसर दिया था आयुषी ने. Okay, good. Everyone, quickly mark your attendance. So far, what we have seen as the definition of an ellipse, it is a set of points or the locus of a point that referred to as a path traced by a point which moves in a plane in such a way such that its sum of distances from two fixed points in the plane is always a constant. तो वो फिक्स पॉइंट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. दे आर रेफरिंग टू फोसाई. फोकस प्लूरल सेंस में होता है और दोनों को एक साथ बोलेंगे तो फोसाई. फोकाई भी हम बोल देते हैं बट अप्रोप्रिएट वर्ड फोसाई होता है. सो आपने क्या नोट करा? इन दोनों का सम पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट हम धीरे धीरे अभी यहां नोट करेंगे, ये एक्चुअल में इक्वल होगा 2a के. व्हाट इज 2a? यहां से लेकर यहां तक का टोटल जो लेंथ है, दिस इज लेंथ इज एक्चुअली 2a. तो जो ये सम है pf1 प्लस pf2 एग्जैक्टली 2a के इक्वल होता है. दिस इज अनदर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलिप्स. Now everyone check out the second way of defining an ellipse. This is one way. The second way goes like this, wherein I am going to talk about the eccentricity of this conic. Recall in the case of parabola. मैं दोबारा से पैराबोला का एक छोटी सी चीज बताता हूं. ये पैराबोला है. तो इस केस में क्या हुआ? चूज एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला x, y. और इसमें मान लीजिए ये हमने डिफाइन करा या इसका ये है फोकस. तो अब अगर हम इस फोकस को ज्वाइन कर देते हैं विद दिस मूविंग पॉइंट और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, लाइन आपकी कहीं यहां होगी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. देखने में नहीं लग रहा बट इफ दे टू आर इक्वल, तो अगर पी एफ
और PM इक्वल हो जाएं, तब हमें जो शेप मिलती है वो हो जाती है एक पैराबोला। और बेसिकली इसमें जो ये रेशो थी PF अपॉन PM, this ratio is referred to as the eccentricity. So in case of parabola, eccentricity is always equal to 1. But this is a ratio of two quantities. It can be also less than 1. It can be also greater than 1. So if it is less than 1, the shape of the curve originated is actually an ellipse. तो अब यहां पर इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए क्या हुआ। There is a fixed point F1, चले मैं ऐसे अलग से दिखा देता हूं एक बार। There is a some fixed point, यहां पर कहीं पर भी एक फिक्स पॉइंट है F या F1 कह दिया, एंड देयर इज अ फिक्स्ड लाइन ओवर हेयर जिसे नाम दिया गया था डायरेक्ट्रिक्स का। दिस लाइन इज फिक्स्ड, दिस पॉइंट फोकस जो है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। नाउ व्हाट हैपन्स, कंसीडर एनी वन पॉइंट, say this particular point in the plane. Join this point and draw the perpendicular from this point in such a way such that PF1 upon PM is less than 1. Let me assume that this value is less than 1 का मतलब कितना हो गया, 0.9 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, राइट। और होगा तो रेशियो है, पॉजिटिव ही होगा। तो लेस देन 1, तो लेस देन 1 में मैं मान लेता हूं से 0.9, लेट मी अज्यूम इट, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी लेंथ छोटी हो गई है, दिस लेंथ इज लिटिल स्मॉलर देन दी परपेंडिकुलर लेंथ। चूज एनी अदर पॉइंट विच सैटिस्फाई द सेम कंडीशन। मान लीजिए वो पॉइंट आपका कहीं यहां आ रहा है, समवेयर, अगर मान लो मैं एज्यूम करता हूं ये है, मान लो वो पॉइंट ये है। तो इस केस में भी क्या हुआ, दिस, और फिर यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये रेशो लेस देन 1 है। आई कंसिडर ऑल सच इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो यहां पॉसिबल हैं, और मैंने उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया, यू विल सी दैट यू विल गेट एग्जैक्टली वन कर्व लाइक दिस, क्योंकि एक फोकस यहां भी कहीं लाई कर रहा होगा, एंड द कर्व ओरिजिनेटेड इज नथिंग बट माई इलिप्स। तो अब आप ऊपर वाले डायग्राम पे फोकस कर सकते हैं। एवरीवन लुक एट द डायग्राम एट द टॉप। और क्योंकि दो फोकस की मतलब फोसाई की बात हुई है, इसका मतलब देयर विल बी टू डायरेक्ट्रिसेस ऑल्सो। एक डायरेक्ट्रिक्स ये रही राइट साइड में, और एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई है लेफ्ट साइड में। इसी तरह से दिस इज द सेंटर 0,0 फॉर इलिप्स जो हम अपने सिलेबस में ले रहे हैं, सेंटर इज फिक्स्ड एट 0,0। बट रिमेंबर दिस इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इलिप्स बिल्कुल आपके पास ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जा रहा हो, बट वी विल बी टेकिंग द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इलिप्स। तो अभी जो हमने बात करी है, सेंटर फिक्स है 0,0 के ऊपर, और ये इस केस में जो एंड पॉइंट्स हैं V1 एंड V2 जो मैंने लिखे हैं, दे रेफर टू एज दी इस वर्टेक्स। तो वर्टिसेस हो गई, दो हैं तो वर्टिसेस। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर आप ध्यान से देखें, a,0 है या -a,0। इस इलिप्स की इक्वेशन ये हो जाती है, लुक एट द टॉप, x² by a²
plus y square by b square is equal to 1 where a is greater than b. This is type 1. दो तरह की इक्वेशंस की हम बात करने वाले हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसमें भी टाइप 1 ऑफ एन इलिप्स है ये. Why this equation? If you are interested, you can check out NCERT. उसमें इसका फॉर्मल प्रूफ दिया हुआ है. जैसे मैंने पैराबोला के केस में y square equal to 4ax derive करके दिखाया था. Same way that can be done with ellipse also, but we are not covering that. Though it is given in NCERT, आप easily समझ सकते हैं उसका फॉर्मल प्रूफ कि ये इक्वेशन कहां से आ गई अचानक से. x square by a square plus y square by b square equal to 1. तो आपको इस इक्वेशन को याद करना है along with the condition a greater than b. और उस केस में टर्मिनोलॉजीज को याद रखिए. क्या क्या मैंने अभी तक बताई हैं. सेंटर, वर्टिसेस, टू फोसाई एंड डायरेक्ट्रिसेस. अब इन इक्वेशंस या इनके कोऑर्डिनेट्स अब हम कैसे निकालते हैं. लेट अस नाउ टॉक अबाउट दैट. Look at this diagram. यही है केस 1 जिसको मैंने टाइप 1 कहा है. सेम एलिप्स मैंने लिया है अभी. सेंटर इज एट 0 0. बस डायग्राम थोड़ा बेटर और बिगर बना दिया है. तो सेंटर इज एट 0 0. वर्टेक्स या वर्टिसेस हो गई क्योंकि दो हैं तो ये आ गया a,0 एंड माइनस a,0. और इस केस में चेक करिए आपके पास ए बी जो है ये ए बी. दिस रेफर टू एज इट्स मेजर एक्सिस. और इसकी लेंथ क्या होती है. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a. ए कहां से आया. यहां से गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स. Next, focus on CD. CD length. CD is referred to as the minor axis. और minor axis की लेंथ होती है 2b के इक्वल. और फिर अब आप लॉजिकली रिलेट कर सकते हैं. एक तो b यहां पर है, यहां से b आ गया. और अगर ये टोटल लेंथ 2b है बाय सिमेट्री आधा पोर्शन ऊपर गया होगा आधा नीचे. तो अगर टोटल लेंथ b है तो यहां से यहां तक b लेंथ रही होगी, यहां से यहां तक b रही होगी. बट क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो 0, माइनस b इसके एंड पॉइंट हो जाएंगे. और ऐसे ही c के कोऑर्डिनेट होंगे 0, b. नेक्स्ट टर्म इजी है समझना. लेंथ ऑफ सेमी मेजर. मेजर अगर ये टोटल है ए बी तो सेमी का मतलब इसका आधा हो गया माने ए के इक्वल. और ऐसे ही सेमी माइनर क्या होगा बी के इक्वल आ जाएगा. तो ये साथ साथ फॉर्मूलाज टर्म्स याद करते रहिए. बट स्टिल मैंने अभी फोकस की बात नहीं करी है. फोकाई के कोऑर्डिनेट्स अभी स्टिल पेंडिंग है. चेक करिए ये सारा टर्मिनोलॉजीज मैंने फिर यहां पर अलग से थोड़ा और बेटर वे में दिया है. एसेंट्रिसिटी और यहां हमने लिए हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस. तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में होते हैं AE, 0 एंड माइनस AE, 0. क्या मतलब. अगर पिछले डायग्राम में बात करूं तो यहां पर पॉजिटिव वाला है इसको AE, 0 कहेंगे. नेगेटिव साइड वाला है
तो माइनस ए ई कॉमा 0। ई क्या रहा था? असेंट्रिसिटी, जिसको हमने रेशो की टर्म में बात करी थी। बट ई को समझने के लिए हमें अब ये फॉर्मूला याद करना है। नोट केयरफुली दिस फॉर्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। So that you can open the bracket and simplify and get this expression for E. What does that mean? If A and B are known to me, I can always get the value of its eccentricity. और E की वैल्यू निकल गई तो आप फोकस के अंदर पुट कर देंगे। A तो गिवन ही है, E की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। You will get the vertices of the foci. चेक दिस आउट। ये सब चीजें वही हैं, थोड़ा अलग अलग प्रेजेंटेशन है। फॉर एन इलिप्स एसेंट्रिसिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट। और अगर आप यहां पर ध्यान से नोट करें तो एक फॉर्मूला बन के आ रहा है जिसमें C को कहा गया है AE के इक्वल। जनरली I do not use the notation of C, बट एनसीईआरटी में और रेफरेंस बुक में मिली होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मींस फोकस का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा था? AE कॉमा 0 या माइनस AE कॉमा 0। तो दोनों को मिलाकर ये याद कर लिया और AE को हमने सिर्फ C कह दिया, दैट्स इट। तो AE को C कह दिया है, ये एक नई नोटेशन यूज हो गई ताकि इसकी हेल्प से मैं E को एलिमिनेट कर दूंगा एज अनदर फॉर्मूला। तो C अगर आप नहीं भी यूज करते हैं, even you will be able to understand and solve the questions. अब किस तरह के क्वेश्चंस की और क्या बात होगी, लेट्स प्रोसीड, मूव ऑन धीरे धीरे। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। चेक करिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये फॉर्मूला पहले ही बता दिया है। व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट एंड रीअरेंज, तो आपके पास चेक कर लीजिए, ये आ रहा है रिजल्ट। और इन अदर वर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और सब लेबलिंग हो चुका है कि ये ए बी सी क्या क्या है। ए क्या है? ये वाली लेंथ। बी क्या है? ये वाली लेंथ। और सी क्या है? यहां से यहां तक, फोकस तक का जो डिस्टेंस है। तो इन तीनों क्वांटिटीज में, ए बी सी में, हमेशा ये रिजल्ट होता है। नेक्स्ट चेक करिए, लेटस रेक्टम। इसके ऊपर तक का तो हम सब कर चुके हैं। हाँ, ये रह गया इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। वैसे तो कॉमन सेंस की बात हो रही है। मेजर एक्सिस का मतलब क्या हो गया? ये वाली एक्सिस थी इसकी मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 0। इसी तरह से बात करी गई है अबाउट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम हमने किस तरह से डिफाइन किया था? There is some error
my pen is not working. So you can easily check this out. Latus rectum हमने कैसे डिफाइन करा था? फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉप हो गया, लुक इन द डायग्राम. फोकस के ऊपर जो मैंने ड्रॉ करा हुआ है राइट साइड में येलो कलर से, फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो जो ये टोटल लेंथ आ रही है ऊपर वाले पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक, इसे कहा गया था LR, लेटस रेक्टम. और इसका फॉर्मूला होता है 2b² by a². लर्न दिस फॉर्मूला, 2b² by a. एसेंट्रिसिटी का मैं बता ही चुका हूं. एंड फाइनली जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, they are all compiled together. This is my type of ellipse referred to as a vertical ellipse. type 2 ellipse होता है. और चेक करिए, ओके, चेक दिस आउट. इस केस में क्या हुआ, वर्टिकल एलिप्स जो मैं टर्म अब मैं यूज कर रहा हूं, इसमें क्या होगा, यहां पर इक्वेशन विल बी द सेम. x² by a² plus y² by b² is 1, but in this case a is less than b. a less than b का मतलब क्या हो गया, इलिप्स अब आपके पास शेप कैसी हो जाएगी, a यहां होता है ना तो वो छोटी हो गई, यहां ये बिगर आ गया. तो व्हेन आई कंसीडर द इलिप्स तो ये वर्टिकल इलिप्स आ जाएगा. दिस इज माय टाइप 2 वाला इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स. एवरीवन फोकस ऑन द फॉर्मूलाज एज ऑफ नाउ. इस पोर्शन को पढ़कर देखिए, ये वाला टाइप 1 का इलिप्स की मैंने बात करी है और उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल फॉर्मूलाज आर हियर. चेक दिस आउट. इलिप्स की शेप एक रफ बना दिया आपके लिए, और स्टार्टिंग विद b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e². ये अब आपको टेबल याद होनी चाहिए. सेंटर 0,0, वर्टेक्स प्लस माइनस a,0, क्योंकि दो वर्टेक्स हो गई है ना, वर्टिसेस. फोकस प्लस माइनस AE, 0. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² by a. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वो बताई नहीं थी, बट वो मैंने यहां लिख दिया है. अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस a by e. x इज इक्वल टू प्लस माइनस a by e. मेजर एक्सिस x एक्सिस हो गई और उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0. और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 2a. माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 2b. So that way one can easily understand. So ultimately you need to learn all these value. पूरी टेबल आपको ये याद होनी चाहिए along with its diagram, imagination. और अब जो मैंने आपको वर्टिकल इलिप्स बताया, इस वर्टिकल इलिप्स के लिए ये रहे सारे फार्मूलास यहां पर, और इन्हें याद करना समझना बहुत इजी है. किस तरीके से, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, प्लीज एवरीवन चेक दिस आउट. a को b से रिप्लेस कर दो, x को y से रिप्लेस कर दो. लॉजिकली जो ये फार्मूलाज थे यहां वाले, इन फार्मूलाज में a और b को इंटरचेंज, x और y को इंटरचेंज. बट थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है. वो लॉजिकली सोचने का मतलब क्या हो गया कि अब मेरा फोकस क्योंकि क्लियरली y एक्सिस के ऊपर होगा,
तो फोकस के कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस का पॉइंट हमेशा इस फॉर्म में होता है 0, बी। तो इंस्टेड यहां देखो फोकस क्या था, प्लस माइनस ए ई, तो ए की जगह बी कर दो, कर दिया। बट साथ ही साथ वाई एक्सिस का पॉइंट है तो 0, प्लस माइनस बीई हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं वर्टेक्स, एवरीवन, वर्टेक्स नॉर्मल पैरा एलिप्स में क्या देखा था पहले वाले में, प्लस माइनस ए, 0, ए की जगह बी कर दो, बट वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा वर्टेक्स, आपके पास ये हो गई वर्टेक्स, तो वो 0, प्लस माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए था, और सेकेंड टाइप के एलिप्स का हो जाएगा 2a स्क्वायर बाय बी। ए और बी को इंटरचेंज कर दिया। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। सेकेंड वाले इस एलिप्स की क्या हो जाएगी, ए और बी को इंटरचेंज कर दो, राइट। तो ओ सॉरी, यहां पर ये y आएगा, यस दिस इज, यहां x और y भी तो इंटरचेंज होने थे, तो ये y आएगा, दिस इज y। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी, कुछ ऐसे दिखेगी, लाइक दिस, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। Similarly, you can understand major axis, equation of major axis, length of major axis, यहां length of major axis अब 2b हो जाएगी। तो फाइनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट, जिसमें आपके पास सारे कंपैरेटिव फॉर्मूलाज को दे दिया गया है। नेक्स्ट क्लास से विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसके अंदर आपके सामने ही है, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए और आप वैल्यूज सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे, इजीली विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। तो मेन थिंग, लास्ट थिंग, मेक अ नोट ऑफ दिस टेबल, ये जो हाईलाइट करा हुआ है इसे बस थोड़ा ध्यान से, everyone please mark your attendance and then now you can leave the class. Yeah, thank you, good day. Chale, you can leave the class now.